Hello student, today we are going to start with question number 23 of Ainapure of BCom book. This is from the following balance appeared in the books of Nervous Limited as 31st March. They are not giving you the balance sheet, instead of that they are giving you debit balance, credit balance. Asset all indicate debit balance, liability indicate credit balance. बराबर है. गुडविल टिक मार्क ऑन गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग बिक सकता है, प्लांट बिक सकता है, इन्वेस्टमेंट बिक सकता है, करंट एसेट बिक सकता है, प्रॉफिट लॉस पर टिक मार्क करो, कचरा एसेट है, यहाँ प्रेफरेंस है, इक्विटी है, डिबेंचर इंटरेस्ट अक्रूड, लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, करंट लायबिलिटी. आगे द क्लेम फॉर डैमेजेस against the company is pending in the court amounting to rupees 1 lakh and the arrears of dividend rupees 70,000. The board of directors agreed to present a realistic picture of the state of affairs of the company's position and the following theme of reconstruction was sanctioned and approved and implemented. Preference share to be reduced to equal number of fully paid preference shares of rupees 80 each. Equity share to be reduced to equal number of equity share of 2.50 each. The preference shareholders waive half of the dividend and receive and 14,000 equity share of 2.50 each to be issued in lieu of मतलब बदले में. इसके प्रेफरेंस शेयर के बदले में एक प्रेफरेंस डिविडेंड के बदले में इक्विटी शेयर. ओके 8% डिबेंचर होल्डर्स टू cover the company's part of the security of a book value of 3,60,000 rupees, 5 lakh in part satisfaction of the loan and 1 lakh equity shares of rupees 2.50 each is to be issued to them for the balance of the loan. Debenture holders waive their interest due on debentures. Claim for damage in the court was settled by issue of 12,000 equity shares of rupees 2.50 each fully paid up. Directors have converted their loan into equity of 2.50 each fully paid up. All intangible and fictitious assets are to be written off. Assets are to be revalued as under plant and machinery investment. You are required to prepare past journalities to record the whole transaction. Above scheme of reconstruction in the books of Nervous Limited, capital reduction account and the balance sheet after reconstruction. ठीक है, I take to the journality part first. ठीक है, let's begin with journal of this company. रेडी है सब लोग? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रेफरेंस चार्ट रिड्यूस टू इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड प्रेफरेंस चार्ट 80. ये क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिंपल ओल्ड वैल्यू डेबिट. कितना है ओल्ड वैल्यू प्रेफरेंस चार्ट है? कितना परसेंट है? 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है. 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. हमनी शेयर है प्रेफरेंस शेयर है कितना? 10 लाख है ना. 10,000 शेयर ऑफ 100 each है ना, into 100 कितना आ जाएगा? 10 लाख. तो न्यू वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर है कितना? इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 80. तो ही से 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हाउ मच? 10,000 into 80. बोलो 8 lakh. And so 10,000 into 20. बोलो ये हो गई फर्स्ट एंट्री. बराबर है. अब ना इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड टू इक्वल नंबर ऑफ फुली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 2.50. पहले क्या करने का सबको समझ में आ रहा है ना? ओल्ड वैल्यू कैंसिल करेंगे. इक्विटी शेयर कैपिटल account to equity share capital and to capital reduction. बोलो how much? How many shares are there? Equity share कितना? 2 lakh shares of 10 each है ना. into
एक इक्विटी शेयर कितने का हो रहा है? how much is one equity share? worth 2.50 ना, 2 लाख into 2.50 करो कितना 5 लाख? बोलो आया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर वेव हाफ ऑफ द अर्लियर ऑफ डिविडेंड। ये पहले क्या करने का कल ही सिखाया था मैंने, वापस एक फिर से एक बार बता रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैरी द फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। कितना मेरा प्रेफरेंस शेयर है, कितना प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकालोगे? वाई ओवर टू कैलकुलेट प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड है कितना? 10 लाख है, 10 लाख है ना, इनटू कितना परसेंट है? 7%। तो कितना होता है? 10 लाख पे 7% निकालो जरा, कितना? 70,000 क्या? हाँ 70,000। 70,000 एक साल का डिविडेंड। कितने साल का डिविडेंड बाकी है वहां पढ़ो। प्रेफरेंस डिविडेंड अर्लियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड 70,000 बजट के निकालने की जरूरत ही नहीं थी, वहां रेडीमेड दे ही जाता उसका। पॉइंट नंबर 2 बी में क्या एक साल का डिविडेंड बाकी है? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वेव हाफ ऑफ द डिविडेंड। ये हाफ डिफाइन होता है। 35,000 क्या किया? वेव किया। वेव मतलब माफ किया। नो प्रॉफिट नो लॉस नो एंट्री, बराबर है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नथिंग इज पेड, नो प्रॉफिट नो लॉस नो एंट्री। बाकी का हाफ कैसा पे किया? इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर। 14,000 इक्विटी शेयर ऑफ हाउ मच? 2.50। जब 14,000 into 2.50 करो देखो कितना होता है? सेम बराबर आता है। क्या दिया? 35,000 रुपीस का इक्विटी शेयर दिया। ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। व्हाट इज द एंट्री? फिक्स एंट्री मैंने बताया था। क्या एंट्री आती है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। कैपिटल कितना? 35। ये हो गया पॉइंट नंबर सेकंड। नाउ पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रहा है? 8% डिबेंचर्स। Hey, this is the most important one. 8% debentures. 8% debentures के बारे में क्या बोल रहा है? 8% डिबेंचर टू फॉर द कंपनी पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 3 लाख 60 एट 5 लाख। अच्छा यहाँ क्या बोलते हैं? ऐसे एग्रीमेंट को दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लायबिलिटी सेटल्स अगेंस्ट एसेट। बराबर है? या एसेट सेटल अगेंस्ट लायबिलिटी या लायबिलिटी सेटल दोनों खत्म होएगा। 8% डिबेंचर भी खत्म होएगा। और वो क्या लेके जा रहा है? लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग कितने का लेके जा रहा है? 5 लाख का। कितना परसेंट डिबेंचर है? 8%। 8% डिबेंचर अकाउंट डेबिट हाउ मच इज? Having a book value बराबर है कितना है? 10 लाख ना। 2 क्या लेके जा रहा है वो? लैंड बिल्डिंग। लैंड बिल्डिंग है कितने का? बुक वैल्यू क्या है? 3 लाख 50 है ना। और लेके कितने में जा रहा है? 5 लाख में। तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कहा जाएगा कैपिटल रिडक्शन। कल जो किया था सेम वैसे के वैसे सेम कितना? 1.5 लाख का प्रॉफिट। अब बाकी के लिए क्या बोल रहा है? and 1,20,000 equity shares is to be paid for the balance of their loan, बराबर है। अब बाकी का इक्विटी शेयर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया? डिबेंचर होल्डर को कितना है? 1,20,000। जरा 1,20,000 into 2.5 करो। 5 लाख होता है क्या? नहीं 3 लाख। सर इस फोर्थ एग्जिस्टमेंट में प्लांट एंड मशीनरी तो लिखा हुआ नहीं है, फिर कितना है? इधर लिखने के लिए 8% डिबेंचर टू कवर पार्ट ऑफ सिक्योरिटी हैविंग
So we'll continue this point everyone. यहाँ पे ना एक काम करेंगे, इधर थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना। डिबेंचर होल्डर टू कवर वन ऑफ द कंपनीज टू कवर द सिक्योरिटी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 3,60,000 रुपीस 5 लाख। ये कैसे मालूम पड़ेगा कि डिबेंचर होल्डर लैंड एंड बिल्डिंग ही लेके जा रहे हैं? तो क्वेश्चन में देखो डिबेंचर होल्डर आर सिक्योर्ड बाय लैंड, तो वो जो चीज से सिक्योर्ड है नेचुरली वही एसेट वो लेके जाएंगे, बराबर है? तो कितना ब्रैकेट में दे रहा है ना, स्टेट इज सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग है कितने का? है कितने का? क्वेश्चन में भी देखो कितने का? पूरा लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेके जा रहे, पार्ट। कैसे पता चलता है पार्ट? वो भी कह सकते हैं बैलेंस शीट में क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख का है, क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है? 10 लाख का है ना? यस एवरीवन? 10 लाख इट इज 12 लाख है, सॉरी 12 लाख का है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है? डिबेंचर होल्डर्स टू कवर द सिक्योरिटी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 3,60,000 3,60,000 3,60,000 इट इज, है ना? तो ये भी हम रॉन्ग ले देते हैं। तो पहली बात तो ये मैं थोड़ा हटा देता हूँ सर, देखो इधर, और ये भी हटा देता हूँ। आई टेल यू व्हाई। थोड़ा सा चेंज करेंगे हम इसको। लैंड बिल्डिंग है कितने का? 3,60,000 का। ये तो सबको समझ में है। वो लोग क्या लेके जा रहे हैं? लैंड बिल्डिंग लेके जा रहे हैं। कितने पे लेके जा रहे हैं? 5 लाख। 5 लाख पे लेके जा रहे हैं ना, तो प्रॉफिट हो रहा है ना, कंपनी को प्रॉफिट होएगा। कितने का प्रॉफिट होएगा? 1,40,000 का, बराबर है? दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू यू विल ऐड, तो इट विल बिकम 5 लाख। एग्री? बराबर ना? अच्छा ये प्रॉफिट हो रहा है। अब प्लस यहाँ और भी प्रॉफिट हो रहा है, इसके लिए मैं जरा इसको बाद में लिख रहा हूँ। तू इक्विटी शेयर कितने का लेके जा रहा है? चेक करो इक्विटी शेयर कितना दे रहा है? जैसे इक्विटी शेयर ऑफ व्हाट वैल्यू? 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 1,20,000 इक्विटी शेयर्स 2.5 1,20,000 इक्विटी इनटू 2.5 जब मल्टीप्लाई करो कितना होता है? 3 लाख 3 लाख हुआ। कितना हुआ? 3 लाख हुआ ना, बराबर है? अब क्या करोगे तुम? ओके यहाँ पे 8% डिबेंचर होल्डर टू कवर द पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 3,60,000 रुपीस, how much? 5 lakh in part satisfaction of the loan, and 1,20,000 equity share 2.8 were issued for balance of their loan, for balance to them for the balance मतलब बाकी के लिए, तो बाकी के लिए इतना इक्विटी है, मतलब अब जो बाकी पैसा बचा वो भी इन लोगों ने क्या किया? माफ कर दिया। तो कैसे मिलेगा? तो 10 लाख माइनस दिस 2 करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो और ये भी माइनस करो, तीनों माइनस करो। 140 भी माइनस करना है। यस 140 भी माइनस करो। 2 लाख कितना आ रहा है? 2 लाख आया। अब ये दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है? 3,40,000। अब मीनिंग समझो। अब नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। डिवेंचर होल्डर पहले तो लैंड एंड बिल्डिंग लेके गया है, 5 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग, 3,60,000 का लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख के लेके गया, तो 1,40,000 तो लैंड एंड बिल्डिंग भी कंपनी को प्रॉफिट हो गया। आया ना? कोई भी प्रॉपर्टी ये चैप्टर में क्या रहता है? कैपिटल। अब प्लस तो 10 लाख में से तो 5 लाख ये गया, फिर बचा 5 लाख और देना है, तो 5 लाख का हमको देना क्या चाहिए था? इक्विटी शेयर, लेकिन हमने इसके इक्विटी शेयर बहुत 3 लाख कर दिया, तो कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट और हुआ, तो कितना हो गया? दोनों प्रॉफिट मिला के 3 लाख। तो दिस इज द टोटल, दिस इज द आया समझ में? अब आगे क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स वेव द इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर। ये डिबेंचर होल्डर जो इंटरेस्ट है वो माफ कर दे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स करके ट्रायल बैलेंस में है ना आइटम, डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू 40,000 वो माफ कर दे। तो डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना? 40,000 हाँ 40,000 40। हाँ चलो ये भी खत्म हो गया। नाउ 6 6 क्या बोल रहा है? अब यहाँ से सारे इजी पॉइंट है। हाँ नहीं ये एक वैरायटी है
इस वजह से मैंने प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है। The claim for damage was pending in the court of the law and was settled by issue of 12,000 equity share of 2.50 each. The अब यहाँ पे the claim for damage was pending in the court of law and was settled by issue of 12,000 equity share of 2.50 each fully paid up. ये unrecorded liability है ना? एक unrecorded liability में actual amount paid is the loss. एंट्री क्या आएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू क्या दिया हमने बदले में? इक्विटी शेयर कितने शेयर इश्यू किए हमने? 12,000 इक्विटी शेयर इनटू 2.50 मल्टीप्लाई करो 30,000 आया ना? यस, तो एक्चुअल अमाउंट पेड इज द लॉस और कैसे पे किया? इक्विटी शेयर के फॉर्म। ये हो गया 6 एंट्री। 7 एंट्री क्या बोल रहा है? डायरेक्टर्स कन्वर्टेड द लोन इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 2.50। जरा देखो अगर लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स करके है 2 लाख का, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स अकाउंट डेबिट, ये लोग कुछ माफ कर रहे हैं क्या? नहीं, वो काय में कन्वर्ट कर रहे हैं? इक्विटी शेयर क्या टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना शेयर? 2 लाख रुपए का है ना, तो 2 लाख डिवाइड बाय 2.5 करो, 2 लाख इंटू 2.5 बोलो, you will get number of shares. 2 lakh divided by 2.5 हाँ 80,000 शेयर इंटू 2.50 बराबर है, ये आ गया। फिर ऑल इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स का टू रिटर्न ऑफ, ये सारे कच्चा एसेट राइट ऑफ करना है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बोलो गुडविल, टू गुडविल एंड टू प्रॉफिट एंड how much? Goodwill is 2.5 lakh. 2,50,000 है एंड प्रॉफिट एंड लॉस 8 lakh. मिला के कितना होता है? 11 लाख। 11 लाख ना, क्योंकि एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 9 रिवैल्यूएशन दे रहा है, प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख है, वहाँ कितना है? 11 लाख का कम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट यहाँ 1 लाख है, वहाँ कितना है? मतलब दोनों कम हो रहा है, तो उसकी भी एंट्री क्या आएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड टू इंटरेस्ट। बोलो how much difference लो? वहाँ 11 है, यहाँ 7 है, तो कितना? That is 4 लाख। और इन्वेस्टमेंट कितना है? वहाँ 1,20,000 और यहाँ 1 लाख, तो कितना आएगा? 20। क्या हो जाएगा? 4,20,000। तब हो गया। अब क्या बनाना है पता है ना सबको? You have to prepare the capital reduction account, fairly बनाओ, get the difference, और डिफरेंस जो आएगा वो कहाँ जाएगा? अगर डिफरेंस आया तो कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। बराबर है, चेक करो आना चाहिए डिफरेंस, आएगा ही। डिफरेंस की प्रॉब्लम है, ओके यू जस्ट चेक इट आउट। ओके ओके, so we will I'll just show you how to make a rough capital reduction account. Fair पूछा है, you will do fairly, I'm just doing roughly for you। जहाँ कैपिटल रिडक्शन है, जहाँ कैपिटल रिडक्शन है, पहली एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है, यस। कहाँ पे? राइट साइड में ना, तो अमाउंट खाली लिखिए। थर्ड में, सेकंड में है, यस। कितना है? 15 लाख। नेक्स्ट थर्ड में है, यस। डेबिट में है ना, कितना है डेबिट में? 35,000। नेक्स्ट फोर्थ में क्रेडिट है 3 lakh. 3 लाख 40। फिफ्थ में 40,000। सिक्स्थ में डेबिट है 30,000. हाउ मच? 7th में नहीं है, 8th में, यस। 8th में कितना है? 11 लाख।
नाइन्थ में डेबिट है कितना? 420. और कुछ है क्या? नहीं। टोटल डेटा क्रेडिट बढ़ा है, बोलो 20 20,80,000. लाख 80,000 टोटल आ रहा है क्रेडिट का, 20,80,000 क्रेडिट का टोटल आ रहा है। बोलो डिफरेंस आ जाएगा कैपिटल बैलेंसिंग फिगर हाउ मच? 4,95,000। ये तुम्हारी लास्ट एंट्री क्या बन जाएगी? और फिर ये लास्ट एंट्री हमारी लास्ट एंट्री क्या रहेगी? एंट्री नंबर 10 इट विल बी कैपिटल रिडक्शन, ये डेबिट में आया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल how much? 4 lakh. And this finishes off your problem. Now the balance sheet is left. Okay, you know how to make the balance sheet, everyone? Yes? चलो balance sheet का format बनाओ. Balance sheet का format बनाओ, वो भी मैं बता देता हूँ. So student, we are going to see how to make the balance sheet of the company. That again मैं एक बार फिर से balance sheet बता देता हूँ क्या है यहाँ पे. balance sheet of Novus Limited equities and liabilities मैंने already पहले तुमको explain कर चुका हूँ. equities and liabilities उसमें क्या है? shareholder fund, उसमें share capital, reserve and surplus. then current liability, asset side में क्या आएगा? asset में non current asset, उसमें property plant and equipment, then non current investment, then current asset. current asset में क्या क्या आता है? inventories है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है. ये प्रॉब्लम में नहीं है इसीलिए खाली करंट एसेट. ठीक है, चलो. डेबिट क्या होता है? ऐड. क्रेडिट क्या होता है? ऐड. डेबिट क्या होता है? लेस. एंड क्रेडिट डेबिट क्या होता है? लेस. व्हाट इज द फार्मूला फॉर द न्यू बैलेंस शीट? न्यू बैलेंस शीट का फार्मूला क्या है? ओल्ड बैलेंस शीट प्लस एंड माइनस जर्नल एंट्रीज में जो भी है. ठीक है ना. ओल्ड बैलेंस शीट पहले क्या करेंगे हम लोग? ये ऑर्डर में जाएंगे. शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का तो नोट टू अकाउंट हमेशा आता है. ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे? नोट टू अकाउंट बनाएंगे. ओके, जस्ट मेक द नोट टू अकाउंट ऑफ दिस. बनाते हैं ये. ठीक है, नंबर 1 शेयर कैपिटल क्या है? ए इक्विटी शेयर कैपिटल. फिर क्या लिखेंगे? इशूड सब्सक्राइब and fully paid up. Issued, subscribed and fully paid up. अब इधर देखो क्वेश्चन में, पुरानी बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कितना है? 20 लाख है. 20 लाख वहां क्रेडिट है, 20 लाख डेबिट है. गया आया ना? पहले तो वो कौन. अब क्या इसे रेडी रखने का? अब जो नया इक्विटी है 5 लाख, उसके बाद में 35 क्रेडिट. 5 लाख प्लस 35 535, 535 प्लस 3 लाख 8 लाख 35, 835 प्लस 630 ऐड करो. बोलो 14,60. हाँ 14,60. अब बोल रहा हूँ यहाँ कितना है? 5 लाख. 5 लाख प्लस 35 835 प्लस सॉरी 535 प्लस ये 3 लाख 835 प्लस 30 865 ना. 865 प्लस 2 लाख 10 लाख 65 बराबर है. और कहीं है? नहीं है. 10 लाख 65 डिवाइड बाय 2.5 करो. 10 लाख 65 डिवाइड बाय 2.5 करो. 4 लाख 4,26,000 कॉमा
equity shares वो लाइक 26 और equity shares और rupees 2.50 each 50 की है ना कितना कितना है टोटल हमारा 10 लाख 65 ये समझा अभी हम ये समझा क्या कि हमने पुराना इक्विटी शेयर पहले तो कैंसिल हो गया तीसरा जितने क्रेडिट है वो सब ऐड किया सारे क्रेडिट को ऐड करके डिवाइड बाय क्या किया 2.50 तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा सेम वे ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना है बैलेंस शीट में वो बैलेंस शीट में कितना परसेंट है 10 लाख क्रेडिट है अरे ये सारे इक्विटी शेयर को कैंसिल कर दो लॉस मत कर दो अब 10 लाख क्रेडिट है यहाँ 10 लाख क्रेडिट है कौन बचा 8 लाख और कहीं पूरे प्रॉब्लम में प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो वही 8 लाख डिवाइड बाय कितना है दैट इज 80 मतलब 10,000 अब यहाँ हेडिंग दोगे क्या दोगे हेडिंग डी प्रेफरेंस है क्या डी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड सब्सक्राइब and fully paid up कितना है नंबर ऑफ शेयर्स क्या है बोलो नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 कॉमा 7% preference share of rupees 8 each fully paid तो ऊपर लिख दोगे ना तो कितना 8 लाख तो ये ऐड कर दो दोनों को कितना हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो 18 लाख 65 और ये 18 लाख 65 कहाँ जाएगा इट विल गो योर यहाँ नोट टू अकाउंट नंबर 1 18 लाख ऐसे आया समझा यस एवरीवन अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिबेंचर्स ये डिबेंचर्स वहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट है गया तो डिबेंचर्स के बाद में इंटरनल डिबेंचर वहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट है गया फिर लोन कॉन्ट्रैक्टर वहाँ क्रेडिट है यहाँ डेबिट है गया फिर उसके बाद में करंट लायबिलिटी एक करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट में है जनरल एंट्रीज में कहीं है क्या नहीं तो वो एज इट इज जाएगा एज इट इज कितना है करंट लायबिलिटी 10 लाख है ना ओके फिर उसके बाद में अब खाली क्या बचा रिजर्व में देखो तुम्हारी लास्ट एंट्री में कैपिटल रिडक्शन तो कैपिटल रिजर्व करते हैं और सिंगल आइटम है तो नोट्स टू अकाउंट नहीं बनाएंगे डायरेक्टली लिख देंगे कितना है कैपिटल रिजर्व 4,95 है ना हो गया मेरा ये टोटल चाहिए तो करना कर लो बोलो 28 लाख 5 how much it comes to 23 5 15 20 23 लाख 60,000 ये आ गया ये हो गया मेरा लायबिलिटी अब आ जाओ मेरे एसेट साइड पे बराबर है कितना 33 अच्छा 33 लाख 60 है चलो ये हो गया लेकिन आ गया समझ में अंदर जरा बराबर टोटल करने का ठीक है चलो अब यहाँ ध्यान दो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अब मेरा यहाँ पे जरा मैं यहाँ बना लेता हूँ क्योंकि आई हैव टू शो यू द पोजीशनिंग वेरी वेल तो ये मैं यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये पार्ट तो मेरा हो चुका है ना मेरा प्रेफरेंस शेयर हो गया क्या प्रोडक्शन तो ऑलरेडी सब कैंसिल हो जाता है यहाँ क्या पता ये पूरा कैंसिल हो गया देखो यहाँ पूरा पार्ट कैंसिल हो गया एनुअल कंटिन्यू में बैलेंस शीट हो गया खाली लास्ट एंट्री में नहीं दिखा पाया तो कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली मारना है ठीक है यू हैव द एंट्री विद यू चलो आगे बढ़ते हैं नोट टू अकाउंट दैट इज नॉन करंट एसेट में क्या आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड सेकंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड equipment
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बोलो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहला कॉस्ट आइटम है गुडविल कैंसिल ना, इधर देखो गुडविल गया, अरे फिफ्टी है, प्रॉफिट लॉस भी गया, ये कैंसिल करके रखो। अब क्या बचा, खाली लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। लैंड बिल्डिंग है कितना क्वेश्चन में? 12 लाख। हाँ 12 लाख। 12 लाख है ना, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है? लेस, क्या लिखोगे, लेस रिटर्न ऑफ, क्या लिखोगे, रिटर्न ऑफ ऑन रिकंस्ट्रक्शन, ऑन रिकंस्ट्रक्शन कितना, लेस रिटर्न ऑफ ऑन रिकंस्ट्रक्शन हाउ मच, 3 लाख ना। लैंड बिल्डिंग के बाद में प्लांट एंड मशीनरी कितना प्लांट एंड मशीनरी? 11 11 लाख, 11 लाख। और यहाँ क्या है, देखो यहाँ लैंड बिल्डिंग क्रेडिट है गया, फिर प्लांट एंड मशीनरी भी लेस हो रहा है ना। कहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी, कौन सी एंट्री में है? प्लांट के कैसे दो प्लांट एंड मशीनरी, रेवेन्यू ऑफ रिटर्न प्लांट एंड मशीनरी, लैंड बिल्डिंग, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग ये यहाँ पे कम हुआ ना, दैट इज 3,60,000 से 3,60,000 लेस है ना, वो 3,60,000 है, सॉरी। तो ये क्या बचता है वैल्यू, 8,40,000 हाँ, 60 नहीं है, तो 8,40,000। प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पे है, प्लांट एंड मशीनरी कितनी वैल्यू है? 11 लाख। 4 लाख है ना ये। वो लैंड एंड बिल्डिंग दिस इज नॉट लैंड बिल्डिंग, प्लीज एंटी में भी सही कर लो, ये लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है, ये बल्कि प्लांट एंड मशीनरी। देखिए ये प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख, तो लेस रिटर्न ऑफ, लेस रिटर्न ऑफ ऑन रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज नॉट लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी एवरीवन, इट इज प्लांट एंड मशीनरी। कितना है, 4 लाख है ना, क्या बचेगा, 7 लाख, ये हो गया। अब नाउ डू द टोटल ऑफ दिस, कितना होता है, 15 लाख 40, और ये जाएगा बैलेंस, आ जाएगा बैलेंस शीट में, नोट टू अकाउंट नंबर 2, 15 लाख 40। अब आ जाओ नोट टू अकाउंट नंबर 3, दैट इज नॉन पेड इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, बैलेंस, हाउ मच इट इज, 1,20,000 है, वो भी रिटर्न ऑफ है, यहाँ देखो क्रेडिट है ना, कितना है, 20,000 लेस रिटर्न ऑफ, कितना, 20,000, क्या बचेगा, कितना है, वर्किंग नोट नोट अकाउंट नंबर 3 कितना है, 20,000 ना, बोलो ये हो गया। करंट एसेट और क्या होता है, करंट एसेट कितना है, 17,20,000 है क्या, कोई गारंटी में कुछ नहीं है, बस दैट्स इट। टोटल करो, टोटल करो, बैलेंस शीट का टोटल करो, कितने पे, 33 लाख, 60 पे टैली, यस, एंड दिस फिनिशेस ऑफ माय प्रॉब्लम। ठीक है, दैट्स इट एवरीवन, हैव अ गुड डे। देखते अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड इवन शेयर विद योर फ्रेंड एवरीवन।